यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। ऑलमाइट ने कहा था कि कुछ लोग को हम हमेशा खो देंगे, उन्हें बचा नहीं पाएंगे चाहे जितनी कोशिश कर लें। इसलिए जिन्हें बचा सकते हैं उन्हें बचाना चाहिए। मैं उसे बचाने के बहुत करीब था। मुझे उसे बचाने की जरूरत थी, बचा सकता था। इसी वजह से तो मुझे मेरी पावर्स मिली है। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, मेरे सामने खड़े लोगों की मदद भी नहीं कर पाया मैं, और सिर्फ मेरी वजह से ही आज वो नहीं है। ठीक है, तो चलो उसे वापस लाएं। ये हमारा नहीं, प्रोफेशनल्स का काम है। हमें इस वक्त बीच में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, समझे? शायद तुम सही हो, मगर वहाँ कैंप में मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने अपने आंखों से अपने दोस्तों पर हमला होते हुए देखा और मैं वही खड़ा था, हेल्पलेस। तो अगर मैं अब भी कुछ ना करूं, तो मैं अपने आप को हीरो नहीं कह पाऊंगा कभी भी। कम ऑन, तुम अभी भी उस तक पहुंच सकते हो। हम बाकुगो को बचा सकते हैं। फ्रॉम ईडा टू मिडोरिया। तो मुझे प्लान समझने दो। तुम मोमो को यहाँ लाओगे कनेक्शन बनाने के लिए, विलन्स को ढूंढोगे और फिर बाकुगो को बचाकर यहाँ लाओगे। हाँ, जिन विलन्स ने हमला किया वो हम में से कुछ को मारना चाहते थे, मगर वो बाकुगो को जिंदा ले गए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो उसे कब तक जिंदा रखेंगे, इसीलिए हमें उनके पीछे जाना होगा। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? शांत हो जाओ। मैं करिश्मा के गुस्से को समझ सकता हूँ और ये भी समझ सकता हूँ कि टोडोरोकी क्यों परेशान है। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, मगर हम अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते, समझे? हमें ये ऑलमाइट पर ही छोड़ देना चाहिए। मिस्टर आइजावा ने हमें सिर्फ फाइट करने की और अपनी पावर्स को यूज करने की परमिशन ही दी है। आओयामा ने सही कहा। वैसे मेरी वजह से ही हम हारे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम लोग भी सुनो, बाकुगो को ले जाने वाली बात से हम get from us, but we have to be rational. It doesn't matter how noble your intentions. If you go out there trying to find the bad guys, knowing you're breaking the rules, then you're acting like villains, not heroes. Sorry for interrupting you guys, but I need a moment alone with Midoriya. Sure, let's bolt. I want to see how Jiro and Hagakure are doing. Good idea. Yeah, okay. Feel better, Deku? Thank you for visiting me. We talked to Yaoyorozu yesterday. If we're doing this, it's tonight. Look, I know you've got some pretty hardcore injuries, so I don't know if you can go.
but I wanted to invite you since you probably feel the worst. We'll meet in front of the hospital after dark. Recovery Girl performed some pretty strong healing on your arms while you were unconscious, so you should be able to move them around fairly well. But they were seriously messed up. You've done absurd damage to your body in the last few months. And frankly, this is a whole new league of trauma. You mean I was hurt a lot worse this time? I took a close look at your charts. Your past injuries were bad. Splintered bones and ripped muscles that were painful, sure, but could eventually be repaired. This time, the damage was devastating. Usually, a person's body has limiters that keep it from using more than 80% of its power at any given point. But in a crisis situation, it's possible for those limiters to fall away, allowing someone to use 100%. We call it hysterical strength. The reason we have those limiters in the first place is because our bodies can't handle that type of strain. You had this hysterical strength, and because of that, your power ended up overcharged for an extended period. It's bad for your bones and muscles to get battered, of course, but it's worse for your ligaments. Ligaments protect the joints, and yours have seriously degraded. In other words, if you sustain this type of injury, even just 2 or 3 more times, I don't think you're going to be able to move your arms anymore. For now, focus on rehabilitation. Use them a lot, even if it hurts, and we'll leave the rest to UA. I'll discharge you today so you can go home and take it easy. Take this seriously. Right. Thanks for your help, Doctor. I'm sorry for any trouble I caused. Recovery Girl is fed up with you. But, hey, I get the impression that's nothing new. Also, don't forget, you did save someone. Healing begins in the mind. Try not to worry. Stay positive. Dear Mr. Midoriya, I'm sorry I punched you in the balls. Thank you for saving me, even though you just met me. Please, get better soon so I can thank you in person, okay? Koda. Koda. Hi, Mom. Yeah, I was discharged. मिल गया है, पर मुझे कोई जरूरी काम करना है, इसलिए मैं कल ही घर आऊंगा। हाँ, मैं चल फिर सकता हूँ फिलहाल। बॉडी में बहुत वीकनेस और थकान लग रही है। उनके इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, वो क्योंकि यूए अपने स्टूडेंट्स पर नजर रखना चाहता है और वो ये भी चाहते हैं कि मीडिया इन सब चीजों से दूर रहे। क्या तुम्हारा यूए वापस जाना जरूरी है? आपके लिए कॉल है एंडेवर सर। कौन है? मिस्टर सुकोवो जी का कॉल है पुलिस डिपार्टमेंट से। जी बोलिए। हमें आपकी मदद की जरूरत है सर। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए यहाँ की सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। अच्छी क्वालिटी की डेनिम की तरह स्ट्रांग रहना, उसकी डिजाइन की जैसा स्मार्ट। सोसाइटी का रंग उड़ने मत देना। हम समझ गए। बेस्ट जीनियस। तुम चाहते हो मैं एक नया रिसीवर बनाऊं? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें हमारे प्लान का तो पता होगा ही। पता है, मुझे थोड़ा सोचने दो। पता नहीं यायो रोजू ने क्या डिसाइड किया। चाहे हम उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, पर फैसला उसी का होगा। वो आ गई। मिडोरिया, तो क्या सोचा तुमने? कोई फैसला किया? मुझे लगता है। एक मिनट रुको।
ईडा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम? इतने लोगों में से हमेशा तुम दो ही क्यों होते हो? जब मैं लापरवाही करता हूं तो मुझे रोकने आते हो। होसू के बाद जिन्होंने मुझे माफ किया था, जो गलतियां मैंने की थी तुम भी वही क्यों दोहराना चाहते हो? क्या कुछ सीखे नहीं? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हम लोग अब भी स्टूडेंट्स हैं और यूए हमारी वजह से गलत दिखता है। हम जो करते हैं उसका असर हमारे स्कूल पर पड़ता है, उसका नाम खराब होता है। हमारी मजबूरी है। मुझे पता है तुम्हें रूल्स ब्रेक करना पसंद नहीं है, पर मैं भी गुस्से में हूं और मुझे भी चिंता होती है, समझते क्यों नहीं? मैं एक क्लास रेप हूं, समझे? और मुझे अपने हर एक क्लासमेट की चिंता होती है, सिर्फ बाकुओं की नहीं। तुम्हारी इंजुरीज को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा भाई हॉस्पिटल में हो। अगर तुम्हारी बॉडी सही नहीं हो पाती, बिल्कुल उसकी तरह, क्योंकि मैं बचाने नहीं आया। क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है? या सीधा कह दो कि मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर नहीं। ऐसा नहीं है ईदा, तुम गलत समझ रहे हो। हम सामने से जाकर उन्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहे। हम बिना फाइट किए उन्हें वापस लाएंगे। हाँ, हम छुप कर जाएंगे। मैं कन्वर्ट ऑब्स से बात कर रहा हूँ। हम बिना रूल्स तोड़े अपने दोस्तों को वापस लाएंगे। मुझे तोडोरोकी के प्लान पे भरोसा है, पर फिर भी चीजें किसी भी वक्त पलट सकती हैं, इसलिए बैकअप के लिए तैयार हूँ। मैं अपने क्लासमेट्स के साथ रहूंगी। तुम मजाक कर रही हो? तुम कमाल हो। मैं जानता हूँ मैं घायल हूँ, और जब तक मेरी बॉडी साथ दे रही है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं साथ आकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैं बस काचान को बचाना चाहता हूँ। हर हीरो के पीछे एक कहानी जुड़ी होती है कि वो कैसे महान बना। सब में एक चीज कॉमन होती है, सोचने से पहले उनकी बॉडी मदद के लिए आगे बढ़ती है, दूसरों की भलाई के लिए। तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। यूएसजे और होसू के हमले के बाद हमें लगा इससे खतरनाक विलन नहीं होंगे कि हमने ये पार कर लिया है। आज यहाँ हमारे साथ सबसे बेहतरीन हीरोज मौजूद हैं, तो चलो स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, कात्सुकी बाकुगो, एस्पायरिंग हीरो, क्या तुम लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन करोगे? पहले अपना चेहरा आईने में देख कर आओ। मगर पहले से कई बुरा अब शुरू होने वाला था। मिडोरिया, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है ईडा, आखिर क्यों तुमने अपनी सोच बदलकर हमारा साथ देने का फैसला किया है? कोई बात नहीं, इसके लिए माफी मत मांगो ईडा। सच कहूँ तो इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा नहीं। बात बिल्कुल सीधी है, अगर किसी भी वक्त हाथापाई की नौबत आ जाती है तो मैं तुरंत मदद के लिए आ जाऊंगा। अगर देखा जाए तो मेरी तुम पर नजर है। हमें भी इसी की जरूरत है। मैं भी इसीलिए आ रही हूँ। बाकुगो को बचाना प्रो हीरोज का काम है। अगर देखा जाए तो हमें वहाँ जाकर उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं जानती हूँ आप सब क्या फील करते हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। ये बात याद रखना। सही कहा, समझ गए। बिना फाइट किए उन्हें बचाना, ये करना मुश्किल है। गुस्से की वजह से बाकी लोगों को सच दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब असलियत उनके सामने आएगी तब उन्हें समझ आएगा कि ये कितना मुश्किल काम है, और वो समझ जाएंगे कि उनका प्लान कितना बेवकूफी भरा है। लोकेशन बता रहा है योकोहामा सिटी के कानागावा एरिया के कमिगो वार्ड में। वहाँ पहुँचने में हमें करीब 2 घंटे लग जाएंगे। रात 10 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो क्या तुमने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को बताया है आज रात हम क्या करने वाले हैं? हाँ, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम ऐसा ना करें। हाँ, उरा राका ने भी बहुत समझाने की कोशिश की कि हम अपनी जिद छोड़ दें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। ये सोचो बाकुगो क्या चाहता है, वरना हम सब कुछ खराब कर देंगे। खैर छोड़ो। पीछे हटो, देखो। हम सबको पता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सबकी मर्जी के खिलाफ है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छा है।
अगर हम चाहें तो इसे रोक भी सकते हैं। मुझे देखकर लगता है कि मैं पीछे हटूंगा। अगर बाकुगो यहाँ होता तो विलन से लड़ने के लिए दूसरी बार सोचता तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है मिडोरिया? वो मेरा दोस्त है। लड़ाई तब मोल लेना जब उसकी जरूरत ना हो, ये हीरो की सबसे बड़ी खासियत है। मॉम, ऑल माइट ने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने अपनी पावर्स के साथ मुझ पर भरोसा किया। मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझ गया, तो फिर ठीक है। तो ये है कामिनो वार्ड। यहाँ कितनी भीड़ है। वो विलेन इस शहर में ही कहीं छुपे हुए हैं। बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए? सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ से हमें हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। उन विलेंस को पता है कि हम कैसे दिखते हैं, याद है ना? और ये मानकर चलो कि हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। सही कहा। इबाम्बे, तुम हम सबसे अलग लग रहे हो मिडोरिया। अगर उन्होंने पहचान लिया तो हम अपने प्लान में जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है, माना कि वो काफी पुराना है। क्या बेवकूफ, क्या देख रहे हो? ये मैं हूँ, भेष बदले हुए। अब ये हुई ना बात दोस्तों। मुझे इससे घिन आ रही है। इन सिंगों से मैं सुरंग खोद दूं? दूर हट रे भिड़ू, निकल यहाँ से। सही नहीं है, तुम्हें अपनी चिन्ह बाहर निकालनी चाहिए। भाई के सामने आवाज दीजिए। हम वो सड़क छाप हैं जो लड़कियों के पीछे पड़े हैं। सही कहा। पहचान में नहीं आ रहे। बच्चों के कपड़े पहनते तो यहाँ सबसे अलग लगते। यायू रोजू, इसके लिए तुम अपनी पावर यूज करके पैसे नहीं बचा सकती थी? हाँ, कर सकती थी, पर वो रोज तोड़ना होता। अगर मैं सब कुछ खुद बनाने लग जाऊँ तो सोचो इकोनॉमी का क्या होगा। हमें देश के बारे में भी सोचना होगा, है कि नहीं? ये भी हमारी ड्यूटी है सिटीजन होने के नाते। सही कहा। तो अमीर लड़कियाँ ही शॉपिंग पर जा सकती हैं, हाँ? ओके गाइस, तो अब हमें इस तरफ जाना है। ये तो यूए हाई स्कूल है। यूए हाई स्कूल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी क्लिप हम यहाँ आप सभी को दिखा रहे हैं। मिस्टर आइजावा, ब्लैड किंग और हमारे प्रिंसिपल। आज हम यहाँ पे आपसे माफी मांगने आए। हाल ही में हुए हादसों की वजह से 27 फर्स्ट ईयर हीरोज घायल हुए हैं और जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हमारी लापरवाही की वजह से हुई परेशानी की हम जिम्मेदारी लेते हैं। हीरोज को ट्रेन करना हमारी ड्यूटी है, पर उन्हें प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है। ये कुछ अजीब है, उन्हें तो टीवी पर आना पसंद नहीं। तो मेरा पहला सवाल है, इस साल के शुरू होते ही यूएस स्टूडेंट्स का विलेंस के साथ 4 बार आमना सामना हुआ, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स को बुरी तरह से इंजरीज हुई। उनकी फैमिलीज को आप कैसे जवाब देंगे? और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए आप ऐसे कौन से कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं? मीडिया को पता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैंसिल नहीं होने की वजह से यूए की हालत कैसी है। वो बस इन्हें बुरा दिखाना चाहते हैं। ये इन्हें ऐसा दिखा रहे हैं जैसे विलेंस हो। हम स्कूल ग्राउंड में पेट्रोलिंग और बढ़ाने वाले हैं और स्कूल की सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। यूए स्टूडेंट्स की सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले आती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये लोग आखिर चाहते क्या? क्या ये हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ाना, दिमाग खराब है इनका। और बाकी हम लोगों का क्या? माहौल अब बदल रहा था। लोगों की बातों से ही समझ आ रहा था, लोग हीरोज के खिलाफ हो रहे थे और हमें पता था अगर हमने कुछ नहीं किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। ये कुछ अजीब नहीं है। अब हीरोज विलन्स दिख रहे हैं। लगता है वो अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे। बुरा भला कहा जा रहा है, पर एक दो गलती तो हर किसी से होती है ना? ऐसा तो नहीं कि वो लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। आज के हीरोज के लिए बहुत मुश्किलें हैं, तुम्हें नहीं लगता बाकुगो? लोगों को बचाने के लिए जब हीरो को पैसा मिलता है तो वो असली हीरो बिल्कुल नहीं रह जाता। स्टेन के काम से हमने यही सीखा है। आज के सिस्टम में हीरो सिर्फ पैसा और नाम की चिंता करता है, और क्योंकि सोसाइटी भी इन बकवास रूल्स को मानती है, उनके अलावा दूसरों को लूजर मानकर हटा देते हैं। तो हमें कुछ सवाल पूछने हैं। हीरो क्या है? जस्टिस क्या है? ये सोसाइटी भेदभाव नहीं करती। जल्द ही सब ये सवाल पूछेंगे, तब हम मानेंगे कि हम जीत गए।
और तुम्हें भी जीतना पसंद है ना? डाबी, उससे जाने दो। हाँ, जानते हो ना ये लड़ने लगेगा। कोई बात नहीं, हम इसे हायर कर रहे हैं तो हम इसे इक्वल ट्रीट करेंगे। वैसे भी ये इतना समझदार है कि अकेला हमारा सामना नहीं कर सकता। देखा जाए तो यूएस स्टूडेंट्स चालाक होते हैं। हे टॉयज, छोड़ दो उसे। हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। जो कहा है करो। अरे यार, यूं जबरदस्ती करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर प्लीज एक बात समझो कि हम कोई गुंडों की टीम नहीं है जो बिना वजह के क्राइम करते हैं। हमने तुम्हें गलती से किडनैप नहीं किया है। माना कि हम अलग अलग जगह से आए हैं, मगर सभी ने बहुत कुछ सहा है। इंसानों की वजह से रूल्स और हीरोज जो हमें खत्म करना चाहते हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। शिगराकी, तुम्हारी बकबक सुनकर मैं थक चुका हूँ। सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आते? या तुम्हें अपनी आवाज बहुत पसंद है? तो तुम्हें दुनिया में मुश्किलें पैदा करनी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो भूल जाओ। क्या तुमने देखा इसने अभी कैसे किया? यार, ऑल माइट जैसे कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो नंबर 1 हीरो है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो हमेशा जीतते ही रहता है। मैं भी जीतूंगा। ऑल माइट की तरह मुझे भी जीतना पसंद है, चाहे तुम मुझे दुनिया की सारी पावर ही क्यों ना दे दो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, समझे तुम? अब देखिए प्रीव्यू। लीग ऑफ विलन्स के अड्डे को इन्वेस्टिगेट करते वक्त हमें एक सीक्रेट नोमू फैक्ट्री मिलती है। पर रुको, काचन वहाँ है कि नहीं? अगला एपिसोड ऑल फॉर वन, हद से आगे बढ़ो प्लस अल्ट्रा।